गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से, जिसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख लेंगे नॉर्मल। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टमक। बेसिकली स्टमक इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, three or you can say four parts. That is one uppermost part are called cardiac, fundus, body and pyloric. By arrow I can show you. See, this is the upper part is called fundus. This upper part is called fundus. Middle part is called cardiac, and the hollow structure which is consisting of is called body, and the lower part of it is called pylorus. So these are the four regions of the stomach normally. And upper openings are, there is two openings. Upper opening is associated with the esophagus, and the lower opening is associated with the opens into the duodenum, which is a part of intestine. So this is the duodenum part, and which is opened in that area. And stomach has three layers. Outermost layer is muscular, is longitudinal muscular layer. Three muscles layers are in the stomach. So outermost is longitudinal muscle layer, middle one is circular muscle layer, and innermost is your oblique muscles layers, which is overlying. Now stomach has two curvatures. One is laser curvature and the second is greater curvature. Laser curvature, which is in a side of, and it is in concave shape, or greater curvature is convex type of and left side of it. Now next is at the end, in a end point of the duodenum, there is an pyloric sphincter. Now sphincter will helps to control the upper downward movement of food. So this way you can understand what is the normal phenomena of stomach. Now inner side of stomach you can see these rugaes, जो ये आपको full folds में दिख रहा है, this is called rugaes of stomach. Okay, now in words we can see stomach is curved circular organ. As well, I had told you that concave lateral border is called laser curvature, and convex left lateral border is called greater curvature. Basically, stomach has four layers. First is mucosa, second is submucosa, muscularis, and outer layer serosa. And there is a three types of gland. Stomach में तीन तरह की gland होती हैं. One is cardiac gland, second is parietal gland, एंड थर्ड इज पाइलोरिक ग्लैंड. जहाँ पर कार्डियक जो ग्लैंड है उसका मेजर काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना. इसके अलावा जो पैराइटल ग्लैंड्स हैं दे सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शॉर्ट में हम जिसको HCl भी कहते हैं, हेंस पेप्सिन, एंड सिक्रीट इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज़ असेंशियल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन. तो जितने भी हमारी पैराइटल ग्लैंड्स हैं दे सिक्रीट सर्टेन काइंड ऑफ फैक्टर्स की जिसकी वजह से विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है. So this is about the normal phenomena of stomach. Now, first of all, we'll see the condition which is called gastritis. तो gastritis is the condition जिसको हम शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है. सो gastritis by name you can understand it is a kind of inflammation which occur in stomach, and it is basically of two types, acute and chronic. Acute जो होता है gastritis which is self limiting, it limits themselves, and chronic gastritis जो है that stays for many years, मतलब वो repeat and reoccurrence अगर हो रहा है gastritis का तो that leads to chronic stage. So this is all about the gastritis side. Now next condition is your peptic ulcer disease, and this is an important question. Sometime it may ask as a short note uh, about the peptic ulcer. So basically peptic ulcer is defined as an ulceration of stomach. So if you know what is ulceration, ulcer form होना मतलब you can say जब मुहामा आता है या फिर आपके माउथ में कभी कभी गर्मी की वजह से या सम ऑफ अदर रीजंस वो जो रेडिश कलर के चकते पड़ते हैं, दैट आर कॉल्ड ulceration. These similar ulcers are formed in the stomach.
अंदर स्टमक के अंदर में फॉर्म हो सकते हैं, या फिर दे मे प्रेजेंट इन द डिओडिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन. They may associated with the symptom of complex burning in the epigastric pain, increase by fasting and improve with the food. Means कि आपको यहाँ पे अल्सरेशन पेप्टिक अल्सर में स्टमक में डिओडिनम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिल सकता है. विद द सिम्टम ऑफ, इसमें सिम्टम क्या दिखाई देता है कि बर्निंग पेन होता है इन द एपिगेस्ट्रिक रीजियन. ठीक है. एंड जो भी पेन है दैट इंक्रीज्ड बाय फास्टिंग. अगर आप खाना नहीं खाओगे लंबे टाइम तक तो आपको ज़्यादा पेन होगा, और जैसे ही आप खाना खा लोगे तो वो पेन आपका रिलीव हो जाएगा. तो अगर इस तरह का पेन दिखाई देता है तो दैट मे बी ड्यू टू द पेप्टिक अल्सर. सो व्हाट इज द पैथोजेनोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर इज ulcer produces due to the failure of mucosal defense. तो basically if you want to know what are the causes of peptic ulcer, तो अगर आपकी जो इनर मोस्ट स्टमक की म्यूकोजल लेयर है जो डिफेंस करती है एसिड के अगेंस्ट, अगर वो प्रॉपर काम नहीं करे, दे मे हैव अ फेलियर, तो दैट मे लीड्स टू पेप्टिक अल्सर. सेकेंड इज ड्यू टू पाइलोरिक इन्फेक्शन. अगर कोई भी तरह का पाइलोरिक इन्फेक्शन हुआ है तो, या फिर ट्रॉमा एंड इंजरी ड्यू टू द स्पाइसी फूड और अल्कोहल. तो अगर क्यों मना किया जाता है कि ज़्यादा स्पाइसी फूड्स नहीं लेने, जस्ट बिकॉज दे मे डैमेज योर इनर म्यूकोजा. नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इफ यू विल टेक मोर पेन किलर्स, राइट, तो मोस्ट ऑफ पेन किलर्स आर NSAID type of drugs which is named as non स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. तो अगर आप उनका ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हो तो दैट में ऑल्सो लीड्स टू अल्सर. इसके अलावा स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो म्यूकोजल के ऊपर जो ब्लड फ्लो है दैट में रिड्यूसेस एंड लीड्स टू अल्सर्स. ओ ब्लड ग्रुप मोर प्रोन टू द डिओडिनल अल्सर, और जितने भी लोग जो ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप के होते हैं they have a more chances to occurrence of ulcers. And stress, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो दैट में ऑल्सो लीड्स टू पैप्टिक अल्सर. तो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ पैप्टिक अल्सर. नाउ नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ पैप्टिक अल्सर. तो व्हेन यू विल सी द मॉर्फोलॉजी मीन्स कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है एक्चुअली व्हेन देयर इज अल्सर. तो मोस्टली द अल्सर्स आर मल्टीपल, क्योंकि अल्सर्स आर नॉट अ सिंगल फॉर्म, एक नहीं होता है, दे आर मल्टीपल इन फॉर्म्स. अगर किसी ऑर्गन में हुआ है तो दे विल बी मल्टीपल. अल्सर्स लोकेटेड एनीवेयर इन द स्टमक एंड डिओडिनम, कहीं भी हो सकते हैं. ऑन साइज ऑफ अल्सर इज लेस देन 2 सेंटीमीटर बाई डायमीटर. अल्सर्स आर इन शेप, दे मे बी राउंड एंड ओवल, or the edges of clear cut punched out with sharply defined margins. The edges of the अल्सर्स, जो भी उसकी मार्जिन है, किनारियाँ हैं, वो बहुत ही क्लियर कट दिखाई देंगी, उभरी हुई होंगी, और जिनको आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो. इसके अलावा गैस्ट्रिक रूगल फोल्ड्स अपीयरिंग एट द रेडिएटिंग फोल्ड इन स्पोक लाइक फैक्शन. और जो भी उसके रूगाइल फोल्ड्स हैं, क्योंकि जो आसपास की जो किनारीज हैं मार्जिन्स हैं उनमें रूगल बन जाता है, एंड दैट दे क्रिएट स्पोक लाइक फैशन. यू कैन सी इन दिस डायग्राम हाउ द अल्सर इज लुक लाइक. सी इन दिस डायग्राम सेकेंड वन येलोइश कलर का जो डायग्राम है, यू कैन सी इन दैट जो मिडल में रेडिश कलर का है दैट इज अल्सर. उसके अराउंड में जो मार्जिन है उसमें म्यूकोजा को उसने फोल्ड में बना लिया है, और जिसकी वजह से वो एक स्पोक लाइक फैशन जैसा दिखता है. इट लुक लाइक एन कि कुछ चक्र जैसा बना है, राइट. तो दिस इज कॉल्ड द पेप्टिक अल्सर. सी इन द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी कि वो कहाँ कहाँ हो सकता है. तो दैट मे इन द फंडल एरिया, दैट मे इन द कार्डियक एरिया, दैट मे इन द बॉडी पार्ट ऑफ इट, और मे बी एट द डिओडिनम एंड. यहाँ पर दीज आर द प्लेसेस ऑफ अल्सर के जहाँ पे हो सकते हैं. Hence, how it look like microscopic appearance of it is ulcer bases and margins are covered by the thin layer of necrotic fibrinous purulent exudate. क्योंकि माइक्रोस्कोपिकली जब आप उसको देखोगे तो वहाँ पे आपको एक्सूडेट दिखाई देंगे, डेड सेल्स दिखाई देंगे उसकी मार्जिन पे. इन और बिनेथ दिस लेयर, और इस जो डेड सेल्स की लेयर है उसके नीचे यू कैन सी द इन्फ्लामेटरी जोन, कि जहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ लेयर्स होगी और जहाँ पे न्यूट्रोफिल्स कलेक्ट हुए रहेंगे. और बिलो दीज न्यूट्रोफिल्स की लेयर के नीचे देयर इज अ जोन ऑफ ग्रेन्युलेशन विच कंसिस्ट दी लिम्फोसाइट्स एंड हिस्टोसाइट्स.
साइट्स। तो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में आपको तीन तरह के जोन दिखाई देते हैं। सबसे पहले जोन में आपको दिखाई देगा दैट इज दी डेड सेल्स, सेकेंड जोन में आपको न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे एंड थर्ड जोन में आपको ग्रेन्युलेशन टिश्यूज दिखाई देंगे विथ लिम्फोसाइट्स। Now what are the complications of peptic ulcer is like hemorrhage हो सकता है क्योंकि there may be chances of bleeding, perforation that may perforate, penetration वो other organs में वो उसी organ को भी penetrate कर सकता है, वहाँ पे छेद हो सकता है, fibrosis का formation हो सकता है या फिर malignant transformation मतलब वो cancerous भी हो सकता है। Now what are the sign and symptoms of it is normally peptic ulcer में epigastric region में burning pain होता है और पेन रात को ज़्यादा होता है क्योंकि रात के टाइम पे सोने के टाइम पे फास्टिंग का टाइम बढ़ जाता है इसलिए। एंड पेन रिलीव बाय द फूड और एंटासिड्स, जब आप फूड लेते हो, कोई भी खाना खाते हो या फिर एंटासिड ड्रग्स लेते हो तो आपका ये पेन अपने आप रिलीव हो जाता है। सो दीज आर दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस साइड। टिल दैट, थैंक यू स्टूडेंट्स।